Okay, so we are starting today's session on webinar. The title is Cut Waste Not Cost. This is a Kaizen seminar, and of course, as you all know, or maybe some of you may be knowing, that Kaizen originated in Japan in 30s after the Second World War. It brought a revival in Japan. Basically, one of the car makers like Toyota, where it was born, as it is, I think Mr. Jayant is there. He will be briefing you more about this. So, right at the moment, this is a topic which is required very much for us, because what is happening, here is today we are facing an unprecedented crisis. If Second World War is a crisis, in some people's opinion, it's a much bigger crisis than Second World War, because the Second World War was limited in certain countries, and now it is not limited to certain countries. 185 countries throughout the world has been affected through this. So I think this is the best time to impart this kind of knowledge. Kaizen means, as it is told, it is a continuous improvement, basically. The improvement which doesn't stop, it is continuous improvement. And again, of course, on this issue, Mr. Jayant is the right person to tell you everything. So I'll tell you in brief about Mr. Jayant Murthy. Jayant Murthy is the co-founder and joint managing director of the Kaizen Institute operations in India, South Asia and Africa. What I understand, Kaizen Institute was set up in 1985, and after that, in 2000, after its 15th anniversary, Kaizen Institute came to India in 2000. So, for you, all of you, I think this session should be an absorbing session. And to take you through, Mr. Jayant Murthy, I'll be inviting Mr. Jayant Murthy. But before that, I would like to tell you something, is that let Mr. Jayant take you through his presentation. And after that, we can take certain questions. In between also, if you feel, you can write in chat, or there's a question answer box here where you can write. And of course, based on that, Mr. Jayant will be taking in few questions which are relevant. So I'll invite Mr. Jayant Murthy for our session today in this cut cost. Thank you, Mr. Jayant Murthy. Please. Thank you very much, Mr. Executive Director. Thank you very much. And I request all of you to kindly mute your microphones and your video so the line is clearer. So, I'm going to start with a favorite story. I'm going to use Hindi and English, थोड़ा Hindi, थोड़ा English. और एक कहानी से मैं शुरू करना चाहूँगा, और ये कहानी है एक आदमी जो रास्ते में चल के जा रहा है, एंड जब वो चल के जा रहा है तो उसको सडनली एक बहुत बड़ा क्राउड नजर आता है, बहुत सारे लोग जमा हैं। तो वहां वो उसके तरफ जाता है देखने की क्या हो रहा है, क्यों इतने सारे, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस क्राउड। एंड जब वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि एक 3-story बिल्डिंग इज ऑन फायर। देयर इज अ बिल्डिंग में आग लगा हुआ है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है, और इसीलिए बहुत सारा भीड़ जमा है। लोग कुछ फायर ब्रिगेड को बुला रहे हैं, कुछ लोग पुलिस को बुला रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है, कमोशन है, पैनिक है। और ये आदमी इस बिल्डिंग को देख रहा है, और सडनली उसको नजर आता है कि 3rd फ्लोर पे एक विंडो खुला है, विंडो में से बहुत धुआं निकल रहा है, और उस धुआं में उसको एक हाथ दिखता है, किसी का हाथ हिलते हुए दिखता है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और भागते हुए बिल्डिंग के पास जाता है, और नीचे से विंडो के पास फिर से देखता है, और जब इस बार देखता है तो उसको he gets really concerned and shocked because उसको अभी एक औरत नजर आती है विंडो पे, एक औरत, और उस औरत के हाथ में एक छोटा बच्चा, और ये औरत चिल्ला रही है, बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ, हेल्प, सेव माय बेबी। सो इमीडिएटली सर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, सर अपना वीडियो ऑन कर लेंगे आप, सर आप दिख नहीं रहे हैं। नो वीडियो में अभी मैं स्लाइड प्रेजेंट करने वाला हूं। सो ओके सर, ओके सर, थैंक यू। सो
So immediately ये चिल्लाता है कि आप अपने बच्चे को थ्रो योर बेबी, आई विल कैच योर बेबी। और जब ये बोलता है तो लोग उसके आजू बाजू में जो खड़े हैं तो वो बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो कि क्या बोल रहे हो, तुम इस औरत को बोल रहे हो कि थर्ड फ्लोर से अपना बच्चा फेंक दे। तो वो कुछ नहीं बोलता है किसी को, फिर से वो चिल्लाता है, लेडी सुनो मेरी बात, आप अपने बच्चे को फेंकिए थर्ड फ्लोर विंडो से, मैं पकड़ लूंगा, मैं जरूर पकड़ूंगा। अब फिर से जो पब्लिक खड़े हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उसको मारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पागल हो, क्या बोल रहे हो, बट टाइम नहीं है, वक्त नहीं है बहस करने का। सो ही लुक्स एट एवरीबॉडी इन द क्राउड और सबको बोलता है कि आप सब लोग अपना मुंह बंद रखिए, शट अप, प्लीज लिसन टू मी, आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉल गोलकीपर और मैं जरूर इस बच्चे को पकड़ सकता हूं। और इस कॉन्फिडेंस से वो बोलता है कि लोग बोलते हैं भाई जाने दो, उसको जो करना है करने दो। और वो जो औरत है बहुत परेशान है, वो डिसाइड करती कि बच्चे को छोड़ने वाली है वो थर्ड फ्लोर से, और वो भगवान का नाम लेके ऊपर से बच्चे को छोड़ देती है। Now you can imagine, my friends, the baby is coming down from the third floor and नीचे this guy is getting ready for the most important catch of his life. एकदम टेंशन का वातावरण है, माहौल बहुत टेंस है और ये आदमी अपना सब हाथ सब फैला के खड़ा है कि बच्चे कहाँ मिस ना हो जाए। और फाइनली उस बच्चे को अपने हाथ में बहुत प्यार से पकड़ लेता है और पकड़ते ही बच्चे को हवा में उछाल के जोर से लात मारता है और वो बच्चा 20 फीट जाके दूर जाके गिरता है। सो माय फ्रेंड्स, शांत हो जाइए, ये सिर्फ एक जोक था, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसने क्यों ये बच्चे को लात मारा। दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग, व्हाई डिड ही किक द बेबी। सो अगर आप में से एक या दो लोग क्विकली आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं क्यों इसने बच्चे को लात मारा, प्लीज बताइए। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है। Can somebody unmute and जी give me हाँ a दिख comment? हाँ, Okay. हाँ जी दिख रहा है। Okay. So why did he kick the baby? Come on, my friends. Tell me. शाम का 6 बजे दिमाग जोर से चलना चाहिए। कोई बताना चाहेगा? Okay. So I don't think या क्योंकि तो उसकी सब हाँ क्योंकि बोलिए। उसकी ट्रेडिशनली ट्रेनिंग इसी लाइन पे थी कि जब बॉल आ रहा हो तो उसको जो है वो हिट करे। हाँ गोलकीपर बिल्कुल, था। वेरी गुड। और कोई रीजन और कोई कारण? एनीबडी एल्स? आई थिंक 100 लोग से ज्यादा कनेक्टेड है अभी, कितने लोग हैं? 100 से प्लस है। हाँ तो 100। बताइए, एनी पार्टिसिपेंट, एनी लिसनर, क्या कारण था? चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। उनको बोलने का ऑप्शन नहीं है, वो अपनी फीडबैक दे नहीं सकते, लिख रहे हैं वहां से लोग। अच्छा, क्या आ रहा है? बिकॉज ही इज फुटबॉल, किसी ने लिखा है बिकॉज ही इज फुटबॉल प्लेयर, एक ने लिखा है बिकॉज ही यूजुअल हैबिट ऑफ किकिंग ऑफ बॉल, हाँ, एक ने लिखा है हैबिट टू चीयर, वेरी गुड। और इज एज्यूमिंग बेबी एज फुटबॉल, ओके, वेरी इट गुड, हैज थैंक बिकम यू हिज हैबिट बीइंग ए फुटबॉल। सेवरल और भी वेरी है गुड, इसकी वेरी इसी गुड, लाइन। वेरी गुड। सो माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका रिएक्शन के लिए। आप लोग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसने इसलिए फुटबॉल लात मारा क्योंकि आदत से मजबूर था वो, हैबिट। आप जानते हैं कि वो एक ट्रेंड फुटबॉल गोलकीपर था, और एक अच्छे गोलकीपर का काम क्या है? बॉल को पकड़ना और बॉल को लात मार के गेम को चालू रखना। सो माय फ्रेंड्स, when we talk of Kaizen, सुधार, परिवर्तन, ऑपरेशनल एक्सेलेंस, और ये कोविड सिचुएशन के बाद बाहर निकलना, फिर से हमारा इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाना, जब हम परिवर्तन, सुधार, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, जब तक हमारा हैबिट्स नहीं बदलेंगे, until our habits change, no परिवर्तन, no सुधार can happen. I hope you understand my point very clearly. अभी कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री
स्वच्छ भारत का घोषणा किया, बहुत ही नेक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्वच्छ भारत. But all of us know as Indians, unless my habits and your habits, our habits change on a day-to-day basis, जब तक हम कचड़ा फेंकने की बंद नहीं करेंगे, थूकने का बंद नहीं करेंगे, तब तक, जब तक हमारे आदत नहीं बदलेंगे, तब तक कोई स्वच्छ भारत होने वाला नहीं है. सिर्फ वो प्रोग्राम रहेगा, एक स्लोगन रहेगा. So it is very important. So the first point I want to make is काइजन का मतलब है हमारे हैबिट्स को बदलना. हम जिस तरीके से आज अपने जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस के, चाहे रिटेल बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, हम किस तरीके से आज अपने प्रोसेसेस और बिजनेस को मैनेज करते हैं, और हमारे जो आज का हैबिट्स है, प्रोसेसेस है, सिस्टम्स है, उसमें और इंप्रूवमेंट लाना, उसी को काइजन बोला जाता है. इसको और आगे आगे हम समझेंगे. तो आप देखते हैं कि आजकल ये कोविड कोरोना के वजह से बहुत सारे पर्सनल हैबिट्स बदल रहे हैं. दुनिया भर में लोग मास्क की बात कर रहे हैं, कैसे छींक खाना है, हाउ शुड यू कॉफ, सोशल डिस्टेंसिंग. these are becoming very very popular global hygiene habits, and I hope they continue to remain after this corona. It's very good for the society. But I'm not here to discuss about personal habits and corona. I'm here to talk about organizational habits. So my friends, I will take a few seconds to describe what is habit. You see, first of all of us have habits. Do you agree? All of us as individuals, हम सबके पास habits हैं. We are not born with habits. हम लोग जिंदगी में habits acquire करते हैं. और कभी आपने सोचा है कि कितने टाइप के habits हैं इस दुनिया में? It's a stupid question, right? There are thousands and millions of habits. But actually आप अगर सोचेंगे, दो ही टाइप के habits हैं, good habits and bad habits. Okay? Good habits help you improve. Bad habits causes lot of problems for you. Now, habits are there in personal habits bhi hai, but there are organizational habits also. Every sanstha has its own habits. For example, the habits in a Tata Group company is very different than the habits of a Reliance Group company. The habits of Titan is very different than habits of Malabar. The habits in a small company is different than the habits of a big company. The habits of an American company is different than the habits of an Indian company. So habits are there even in organizations. Okay. And what you need to understand is organization के अंदर भी habits दो टाइप के हैं, अच्छे habits, बुरे habits, good and bad. And Kaizen means जो बुरे हैं उसको अच्छे में बदलना, वही काइजन बोला जाता है. काइजन का मतलब है, जैसे ईडी साहब ने बताया, निरंतर सुधार, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. ओके, एंड इसके बारे में आज थोड़ा और हम जानेंगे. बट आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मैं अब कई कंपनीज के सीईओ से मिलता हूं और उनको पूछता हूं आपको क्या चाहिए, क्या इच्छा है आपका, तो लोग अक्सर बोलते हैं भाई हमको एक कल्चर चाहिए यार, हमको एक क्वालिटी कल्चर चाहिए, हमको एक इम्प्रूवमेंट कल्चर चाहिए, हमको ऐसा कंपनी में कल्चर चाहिए कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, कस्टमर फोकस्ड कल्चर चाहिए. सो इन इंडिया एवरीबडी इज अवेयर ऑफ व्हाट इज एग्रीकल्चर, राइट? बट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? वी से कल्चर इज अ बंच ऑफ हैबिट्स. अगर आप एक फैक्ट्री, एक बिजनेस में जो भी हैबिट्स हैं, जो भी हमारे हैबिट्स है, वो सब हैबिट्स को आप साथ में लेंगे, इट इज कॉल्ड कल्चर. सो वी टॉक ऑफ इंडियन कल्चर. सो अ बंच ऑफ हैबिट्स, a common habits of everybody is called culture. So in India we have Indian culture, of course we have South Indian, North Indian, East West, different culture, but there are some habits which are common to all Indians. हम लोग, आप कहीं भी जाइए, North, East, West, South, we all say namaste. Namaste is a common greeting. या हम लोग कुछ कॉमन बैड हैबिट्स भी है, बट मैं बैड हैबिट्स के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ. या हम लोग इंडियंस अब कोई भी सीनियर को देखते हैं तो हम लोग फर्स्ट नेम से नहीं बुलाते, पहले नाम से नहीं बुलाते. हम लोग सर बोलेंगे, भाई साहब, भैया, अन्ना, दादा, ऐसा हम फर्स्ट नेम कभी नहीं बोलेंगे. सो माय फ्रेंड्स,
आपको ये समझना है कि काइजन एक कल्चर है, और जब तक हम ये कल्चर बिल्ड नहीं करेंगे तब तक थोड़ा बहुत आप सुधार इधर उधर करते रहेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो काइजन इज अ कल्चर. काइजन इज ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार. और ये कल्चर बिल्ड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कल्चर बहुत पावरफुल होता है. देखिए, कोई मुझे बता रहा था, मैं पढ़ रहा था कि सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में, उसके ऊपर 17 बार अटैक हुआ था अफगानिस्तान से. अफगानिस्तान से 17 बार they tried breaking, and but all the 17 times this temple was rebuilt, because the people believe so strongly in their culture, so it is impossible to sometimes destroy culture. So कल्चर बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है. मुश्किल है, कल्चर बदलना भी मुश्किल है, बट अगर आप बदल सकते हैं, और हम आपको कल्चर बदलने का सूत्र देंगे हम अगले 50 मिनट आज खत्म होने से पहले. अगर आप उस सूत्र को अंडरस्टैंड करेंगे तो धीरे धीरे आप कल्चर बिल्ड कर सकते हैं, और वो कल्चर आपको बहुत काम में आएगा. ओके. अब मुझे याद है कुछ 20 साल पहले एक अमेरिकन कंपनी जो कॉर्नफ्लेक्स बनाता है, बहुत बड़ा फेमस कंपनी, वो इंडिया में आके उन्होंने घोषित किया कि वी विल चेंज द ब्रेकफास्ट कल्चर ऑफ इंडिया. ओके. अभी आफ्टर 20 years now they have accepted that we have failed. We could not change the dhokla, idli, dosa, vada, sambar culture. It is difficult. So culture is a very powerful thing, my friend. But you have to understand that Kaizen is not a project. You have to understand it as a culture. It is not a suggestion scheme. कि किसी को आइडिया मिल गया, आपने एक सजेशन पेटी में आइडिया डाल दिया. That is not Kaizen. Sorry, that is not Kaizen. So what is Kaizen? We will understand. So very quickly, जैसे ED साहब ने बताया, it's a Japanese word. Kai means change, Zen means बेहतर और good. So Kaizen का मतलब है change for the good. अच्छाई के दिशा में सुधार लाना. सी आप सुधार कर सकते हैं बुराई के तरफ भी, मगर ये है अच्छाई के तरफ सुधार लाना. दैट इज कॉल्ड काइजन. एंड अक्सर काइजन को कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार भी बोला जाता है. एंड आज सुबह एक वेबिनार में मुझे कोई पूछा, व्हाई वी शुड डू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. The simple question has a very simple answer, because our problems are also continual in nature. Do you agree with me, my friends? See, if you get problems in your production, problems in quality, problems in in sales, problems in distribution, problems. If you get problems only once in a year, once in 6 months, then ये Kaizen वाइजन का कोई जरूरत नहीं है. But unfortunately, problems are never ending in life. If our problems are never ending, then our ability for continuous improvement, continuous problem solving is also very important. Otherwise, every day when you have problems, every day you will die, every day you will have firefighting. And अक्सर लोग बोलते हैं, मैं सुबह काम पे आता हूं और शाम तक कब शाम होता है पता नहीं चलता. एक फायर के बाद दूसरा फायर, तीसरा फायर, मीटिंग फायर, दिन खत्म हो गया. Okay. So if you are, the only time when you will have zero problem is when you are dead. जब आदमी मर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जब तक आप जिंदा हैं तो तब तक प्रॉब्लम रहेगा. आप शुक्रगुजार, be happy that you are alive. If you are alive, you have problems. And just see this corona problem, nobody anticipated कि दुनिया भर में ऐसा भी एक सिचुएशन आएगा जहां दुनिया बंद लॉकडाउन में हो जाएगा. कौन सा स्ट्रैटेजी वाले ने कोरोना के बारे में अपने स्ट्रैटेजी में सोचा था कि एक पैंडेमिक होगा. सो काइजन का मतलब है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. सो काइजन इज अ मेंटालिटी, ए कल्चर. इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग. सिर्फ सोच नहीं, बट उसमें एक्शंस भी है. एंड अगर आप काइजन के बारे में समझेंगे तो आपका कंपनी लीन और फिट हो सकता है. सो आपने लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुना होगा. लीन प्रोडक्शन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन डिजाइन. ओके.
लीन का मतलब है ऑपोजिट ऑफ लीन इज फैट, मोटा। हम बोलते हैं ना ये आदमी लीन आदमी है, पतला आदमी है, एंड पतले का ऑपोजिट है फैट। तो अगर आप काइजन करेंगे, निरंतर सुधार करेंगे, तो आप अपना मोटापन निकाल सकते हैं, चर्बी निकाल सकते हैं, एंड यू विल बिकम लीन एंड फिट कंपनी, लीन एंड फिट प्रोडक्शन, लीन एंड फिट distribution, lean and fit procurement, lean and fit design department. So everybody, so we all know that if you are mota, you will have problems. जो मोटा आदमी है उसको ब्लड प्रेशर होता है, बैक पेन होता है, शुगर का बीमारी, एंड डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई मोटापन कम करो, बिकम लीन, बिकम फिट. That is very important. So my friends, the reason I am doing this webinar, this is a free webinar. I have covered more than 3,500 people during 30 days. 3,500 people. Today, this is my second webinar of the day. मैं क्यों ये webinar कर रहा हूँ और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि don't cut waste, not cost? Because I think after this corona situation, ये काइजन बहुत जरूरी हो जाएगा साहब, बहुत जरूरी हो जाएगा. क्यों जरूरी होगा? क्योंकि अगर हम कॉस्ट कटिंग करेंगे तो हम शायद अपना मसल्स खो बैठेंगे, हम वेस्ट कट करेंगे तो अपना चर्बी निकल जाएगा, और चर्बी निकलने से फायदा होगा. अगर आप मसल निकालेंगे तो आप वीक हो जाएंगे. सो ये मसल क्या है, चर्बी क्या है, ये डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ट्रेडिशनल जो माइंडसेट है वो बोलता है कि और डालो, और खर्चा करो, और रिसोर्सेस डालो, और कभी कभी रिसोर्सेस डालने के बाद भी, एम्प्लॉइज रखने के बाद, इन्वेस्टमेंट किया, और जगह लिया और मशीन डाला, फिर भी द आउटपुट इज नॉट गुड. But the focus of Kaizen is what? How to minimize, optimize resources, but get maximum output, quantity and quality. You get maximum with optimized input. This is very important. This is the difference in the thinking. Okay. Now, my friends, I wanted to share with you a छोटा और एक story. एंड ये स्टोरी है एक आदमी जो एक वुडन कंपनी में काम करता है, जहां सॉ मिल, और वो अक्सर अपने सॉ मिल से कुछ जो डस्ट है, आपके फैक्ट्री में तो गोल्ड डस्ट निकलता है, बट एक वुडन फैक्ट्री में सॉ डस्ट निकलता है. तो ये सॉ डस्ट लेके एक व्हील बैरो में अक्सर उसको घर पे लेके जाता एज अ फ्यूल, चूल्हे में जलाने के लिए. और ये सिक्योरिटी वाला उसको रोकता और पूछता कि क्या लेके जा रहा हो, और वो बोलता कि मैं, ये वेस्ट है, मैं इसको घर में जलाने के लिए लेके जा रहा हूँ. तो ये सिक्योरिटी आदमी अपना हाथ डालता सॉडस्ट में, और कुछ छुपा तो नहीं है, कुछ चोरी तो नहीं हो रहा है, वो ढूंढता, और कभी कुछ नहीं मिलता और उसको जाने देता था. और ये बहुत साल चला, और हर बार इसको चेक करता, कुछ मिलता नहीं, मगर ये सिक्योरिटी वाले को ऑलवेज डाउट था कि कुछ तो ये चोरी कर रहा है, बट पकड़ नहीं पाया. अल्टीमेटली ये बुढ़ा रिटायर हो जाता है, और आखिरी दिन वापस जा रहा है, तो सिक्योरिटी आदमी बोलता है, देखो तुम तो बहुत साल से कुछ चोरी कर रहे हो, मुझे लगता है, आज तो बता जाओ कि क्या चोरी कर रहे हो. तो हंसते वो बोलता है कि मैं व्हील बैरो चोरी कर रहा था. सो माय फ्रेंड्स, अक्सर हमारे जिंदगी में हम लोग सॉडस्ट में अपना हाथ घुमा घुमा के कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब बड़े बड़े व्हील बैरोज हमारे नजर से छूट जाता है. We forget the big picture and we keep trying to fish in a small pond. But if you understand Kaizen, there is a tremendous opportunity to kill a lot of waste in your operations. Whether you are making gold jewelry, hand jewelry, machine-made jewelry, whatever, Kaizen can be applied even in retail, anywhere. So focus on the big picture and not just the small picture. That is what is my message for today. That is my request. आज मेरा वही सबमिशन है. देखिए, मैं ये वेबिनार सीरीज करने से पहले मैंने सोचा कि ये कोरोना सिचुएशन जो है, उसके बाद लोगों को सक्सेस में वापस सक्सेसफुल ग्रोथ
में लाने में टाइम तो लगने वाला है, और कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिलेगा, कुछ लोगों को थोड़ा स्लोली सक्सेस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि वायरस तो वही है, कुछ लोगों को इन्फेक्शन नहीं होता है, कुछ लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, कुछ लोगों को सीवियर इन्फेक्शन होता है, और बेचारे कुछ लोग इससे मर भी रहे हैं। वायरस वही है, बट उसका इम्पैक्ट अलग अलग है। मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के बाद अगले 6 महीना 1 साल में इस सिचुएशन का इम्पैक्ट अलग अलग कंपनीज के ऊपर अलग अलग होगा। कुछ लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होगा, कुछ लोग शायद पूरा कोलैप्स हो जाएंगे, और कुछ लोग शायद इससे इसका फायदा भी उठाएंगे। एंड एक सेक्टर के अंदर अगर आप बोलेंगे कि एविएशन सेक्टर को बहुत स्ट्रेस होने वाला है, बट एविएशन के अंदर भी कुछ एयरलाइंस थोड़ा बेहतर करेंगे और कुछ लोग शायद टोटली मर जाएंगे। ऐसे ही जेम्स एंड ज्वेलरी में भी कुछ लोग फायदा उठाएंगे, कुछ लोग को बहुत तकलीफ होने वाला है। एंड द पॉइंट इज, अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे क्यों कुछ लोगों को तकलीफ कम होता है और कुछ लोगों को तकलीफ ज्यादा होता है, उनका उत्तर क्या है डॉक्टर का? एक ही उत्तर है, इट इज द उत्तर इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और वो बोलते हैं कि जिसका इम्यूनिटी अच्छा है वो इस कोरोना से बच सकते हैं। तो भाई साहब, माय फ्रेंड्स, माय क्वेश्चन इज, हाउ डू यू बिल्ड योर इम्यूनिटी in your factory, in your business? If you build your immunity, you can survive. And those companies who have been investing in immunity pehle se, they have a better chance of surviving. So Kaizen is a immunity, it is a muscle which will give you ability to survive. So my friends, for success you need two things. Number one is called strategy. Of course, ये लॉकडाउन के टाइम एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, क्या कौन से कस्टमर, कौन सा प्राइसिंग, कौन सा मार्केट के ऊपर, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर हमको आगे काम करना चाहिए, कैसे हम अपने कॉस्ट को मैनेज करेंगे वगैरह वगैरह। सो स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल फेल कर जाता है, क्योंकि आपका ऑपरेशंस बहुत पुअर होते हैं, आपका एग्जीक्यूशन बहुत पुअर होता है। There is a lot of studies to prove that great strategies fail because of very bad execution. So my friends, I will say that after this COVID situation, जिसका एग्जीक्यूशन मसल स्ट्रांग होगा, जिसका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होगा, ऑपरेशन स्ट्रांग होगा, उसको इम्यूनिटी ज्यादा मिलेगा। सिर्फ स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलने वाला है, बिकॉज आपके जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर स्ट्रैटेजी कई लोगों का सेम होगा, हम ये करेंगे, हम डिस्काउंट दे देंगे, हम वो करेंगे। तो स्ट्रैटेजी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट उसको कौन ऑपरेशन में लाता है, अच्छा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करता है, वही राजा होगा, वही बादशाह होगा। और उस ऑपरेशन के ऊपर फोकस करना, ऑपरेशन मसल को इंप्रूव करना, दैट इज काइजन। सो एग्जीक्यूशन, operational excellence, that is very important. strategy तो important है, but ये बहुत important है। So now अगर आप पूछेंगे कि operational excellence का goal क्या है, what is the measure, what is the objective, it is called OTIFEF. OTIF means on time, in full, error free delivery of product and services. This is of the focus of operational excellence. Okay, so any customer, he wants only three things. He wants the goods to be delivered on time, in full and error free. अगर आप एक मसाला डोसा भी खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में, आपको क्या चाहिए? वो डोसा should be given to you on time, 10 मिनट के अंदर डोसा आना चाहिए। It should be in full. अगर डोसा आ गया और सांबार नहीं है, you are not happy. And
आप डोसा खाने के बाद आपने बिल मांगा और बिल में आ गया 1 डोसा 1 कॉफी एंड 1 गुलाब जामुन, यू विल से भाई साहब मैंने तो कॉफी पिया नहीं, मैंने गुलाब जामुन ऑर्डर किया नहीं, ये बिल में क्यों आ गया? हिल से आई डोंट नो सर, आप हमको ईमेल डालिए, ओरिजिनल रिक्विजिशन दिखाइए, हम डिस्कस करेंगे, हम अकाउंट डिपार्टमेंट से आपको रिप्लाई करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। आर यू हैप्पी? यू आर नॉट हैप्पी। सो when I say error free, I'm not talking of product error, I'm also talking of transactional error. अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक, इनवॉइस में मिस्टेक, टेस्ट सर्टिफिकेट में मिस्टेक, ये वो, सो एक कस्टमर इससे भी काफी इरिटेटेड हो जाता है। वो बोलेगा भाई आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, बट आपके साथ बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है साहब, आपका कोटेशन स्लो आता है, आप इनवॉइसेस गलत बेचते हैं, आपका टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं आता है, कंसाइनमेंट रुक जाता है। सो देयर आर, व्हेन आई से एरर फ्री, इट इज नॉट ओनली प्रोडक्ट बट द कस्टमर एक्सपीरियंस हैज टू बी आल्सो एरर फ्री। संपूर्ण एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ऑपरेशनल एक्सीलेंस का फोकस है ऑन टाइम, इन फुल, एरर फ्री डिलीवरी देना प्रोडक्ट का, एंड ऑफ कोर्स राइट प्राइस के अंदर, वो तो बहुत जरूरी होता ही है। सो हमारा फोकस है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, काइजन का फोकस है ऑपरेशनल एक्सीलेंस। सुधार क्यों करना चाहिए? निरंतर सुधार। व्हाई डू कंटिन्यू इंप्रूवमेंट? टू इंप्रूव योर ऑपरेशंस। एंड व्हेन आई टॉक ऑफ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, देयर आर 2 वेज टू इंप्रूव योर ऑपरेशंस। अगर आप सेल्स मैनेजर के पास जाके बोलते हैं भाई इंप्रूव, प्लीज इंप्रूव सेल्स, द ट्रेडिशनल आंसर ऑफ द सेल्स मैनेजर इज यस I can improve sales, but I need addition. I need addition of sales people. मुझे तीन और सेल्समैन दीजिए, मुझे कुछ और प्रोडक्ट वैरायटी दीजिए, मुझे थोड़ा और डिस्काउंट दीजिए, मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए, तो मैं सेल्स इंप्रूव करूंगा। अगर आप प्रोडक्शन आदमी के पास जाएंगे, बोलेंगे प्रोडक्शन इंप्रूव करो, हाँ जरूर कर सकते हैं, मुझे 4 आदमी और चाहिए, मुझे इतना स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा चाहिए, वो मशीन चाहिए, ये चाहिए, मुझे आप ये दीजिए। तो जब भी आप इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो लोग आपको शॉपिंग लिस्ट पकड़ा देते हैं, बराबर है ना? आप हमको ये दीजिए तो हम आपको सुधार देंगे। माय फ्रेंड्स, इंप्रूवमेंट विथ एडिशन इज वन वे ऑफ इंप्रूवमेंट। आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, but when you improve by adding resources, by adding more people, square feet, machines, then you also need money, खर्चा। अगर आप खर्चा करके सुधार करेंगे ठीक है, मगर इसमें 2 तकलीफ है। एक तो यू नीड मनी, और ये कोविड के बाद ये मनी मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा इफ यू यूज द मनी, यू आर यूजिंग द पावर ऑफ रुपया टू इंप्रूव, यू आर नॉट यूजिंग द पावर ऑफ योर ब्रेन्स टू इंप्रूव। सो as a manager, as a company, you have one more option to improve, and that is called improvement through deletion. Delete and improve. So as a company, you have 2 options. You can add and improve, or you can delete and improve. Now my question is, should you add first or delete first? The traditional focus of everybody is, let us add more machines, let us add more people, let us add, and somehow we feel add करने से सुधार हो जाएगा। But काइजन क्या बोलता है? First delete, first optimize. पहला खर्चे की बात मत करो, पहले जो आपके पास है उसको वापरने का बात करो। How can I use every employee, every machine, every square feet, every kilogram of gold, every piece of inventory I have, कैसे मैं उसको और यूटिलाइज कर सकता हूं बिफोर आई आस्क फॉर मोर खर्चा, बिफोर आई एड मोर। आपने गन्ने का रस तो पिया होगा, गन्ने के रस में क्या होता है? वो गन्ना डालता है, जूस निकलता है, क्या वो गन्ने को फेंक देता है? ना, वो फिर से गन्ने को डालेगा मशीन में, थोड़ा और जूस निकालेगा, तीसरी बार वो नींबू के साथ डालेगा, और चौथा बार जब वो डालता है, वो गन्ना बोलता है भाई मुझे छोड़ दो, मेरे पास और कुछ जूस नहीं है तुमको देने के लिए। इसको काइजन थिंकिंग बोला जाता है। क्या हम अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं? यस और नो। और जो भी कंपनी में, बहुत सारे हम लोग ज्वेलरी कंपनी सीब्स में काम करते हैं, मैं देखता हूं कि आप इतना वेस्टेज होता है। वेस्टेज मीन मैं गोल्ड डस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोसेस में रीवर्क, लाइन बैलेंसिंग नहीं है,
आप प्रोडक्टिविटी लोगों का बहुत कम है, लोग बैठे हुए हैं क्योंकि पीछे से काम आगे नहीं आया है, लाइन बैलेंसिंग नहीं है, मशीन डाउन है, मशीन चालू है तो मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है तो स्टोन नहीं आया, स्टोन है तो साला कास्टिंग नहीं हुआ है। तो सो मच ऑफ रुकावट के लिए खेद है। जब आपका गाड़ी रुक रुक के चलता है तो खर्चा तो बढ़ेगा ना, खर्चा तो बढ़ेगा। तो पहले भी रुकावट को बंद करना है या और आप और खर्चा करेंगे? आप सोच लीजिए, आपके पास पैसा है तो खर्चा करिए। आपने कंपनी में सब मैनेजर्स को निकाल दीजिए, सिर्फ आईआईएम के ग्रेजुएट्स को लाइए या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट्स को लाइए, जरूर आपका धंधा अच्छा होगा। बट क्या आप इस खर्चा कर सकते हैं? एक भी आईआईएम का बंदा आप उठा सकते हैं? नहीं ना। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि यू हैव टू लर्न टू डिलीट बिफोर यू ऐड, एंड द साइंस ऑफ डिलीशन इज कॉल्ड काइजन। साइंस ऑफ डिलीशन इज कॉल्ड काइजन। खर्चा करने की तो बात सबको समझ में आती है, बट डिलीट करना, हमारे प्रोसेस में वेस्ट डिलीट करना एक साइंस है, एक टेक्निक है, वो समझना पड़ता है। वही वही काइजन है। काइजन इंस्टीट्यूट का काम उसी एरिया में है। सो माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मैं डिलीट की बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार चल रहा होगा कि हाँ हाँ हाँ, डिलीट बोला भाई, हमको 10 लोग निकालना है पॉलिशिंग में से, 15 को निकालना है सेटिंग में से, हमको 8 लोग सेल्स में से निकालना है। और आप गिनती कर रहे हैं, वो सतीश को निकालना है, वो पटेल को निकालना है, वो श्रीनिवास को निकालना है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। काइजन का मतलब ये नहीं है कि आप ह्यूमन बीइंग्स, अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को डिलीट करें। इनफैक्ट मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि ये इस सिचुएशन में सबके साथ सबका विकास बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स। अगर हम लोग सब लोगों को काट के आगे बढ़ेंगे तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस विल बिकम इवन वर्स। इसी को मैं बोलता हूं कटिंग कॉस्ट एट एनी कॉस्ट, कैंची चलाना। और कटिंग कॉस्ट इज वेरी सिंपल, कि कटिंग कॉस्ट के लिए कोई दिमाग की जरूरत नहीं होता है। भाई 20 लोगों को निकाल दो, अरे भाई साहब स्पेयर पार्ट मत कर दो, अरे वो वेंडर को पैसा यार उसको डिले कराओ, अरे वो मार्केटिंग बजट बंद कर दो, चाय बंद कर दो, चाय में शक्कर बंद कर दो। इसको क्या आप, इसके लिए दिमाग की जरूरत है? ये तो कोई भी अनपढ़ आदमी कर सकता है। कटिंग कॉस्ट इज वेरी डेंजरस माय फ्रेंड्स, बिकॉज जब आप कॉस्ट कट करते हैं तो आपका मसल वीक हो जाता है। और 2 साल 1.5 साल जब भी बिजनेस बढ़ेगा, आपने अपने आप को इतना वीक कर दिया है तो आपका मार्केट शेयर चला जाएगा। तो सोच समझ के कॉस्ट मत कट करिए, वेस्ट को एलिमिनेट करिए। जब भी आप काम करते हैं तो 2 चीज है, एक वेस्टफुल काम होता है और उसमें यूजफुल काम होता है। जैसे सुबह किसी ने आपके घर में बताया भाई एक कप चाय पिलाओ, 9 बजे उस आदमी ने बताया, फैमिली मेंबर ने चाय पिलाओ, आप गए चाय बना के, 12 मिनट के बाद आप बाहर आके उसको चाय पिलाया, 12 मिनट लगा। क्या चाय बनाने में, चाय उबलने में, पत्ती डालने में, दूध उबालने में 12 मिनट लगते हैं? नहीं। एक कप का पानी 2 मिनट में उबल जाता है, 1 मिनट पर आप दूध, शायद 4 मिनट में चाय तैयार। बट 12 मिनट क्यों लगे? क्योंकि जब आप अंदर गए तो आपको पतीला नहीं मिला, पतीला मिला तो गैस नहीं जल रहा था, गैस जल रहा था तो आपको चाय पत्ती नहीं मिला। फाइनली सब तैयार हुआ, आपने टेस्ट किया तो अच्छा नहीं लगा, तो आपने रीवर्क किया, रीप्रोसेसिंग किया, फिर से दूध डाला, फिर से उबाला, सब किया तो ग्लास नहीं मिला, ग्लास गंदा था। फाइनली रुक रुक के रुकावट के लिए खेद है, 12 मिनट के बाद आपने चाय पिलाया। यही कहानी है घर घर का, यही कहानी है हर बिजनेस का, हर फैक्ट्री का, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में। और ये ज्यादा है क्योंकि आपके इंडस्ट्री में नॉर्मली प्रोफेशनलिज्म, एजुकेशन कम है कंपेयर टू ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल, बहुत ट्रेडिशनल है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि काइजन का जमाना है, काइजन का रिक्वायरमेंट है और डिलीशन सीखना बहुत जरूरी है। तो हमारा दिमाग कहाँ चलता है? हमारा दिमाग क्यों हम चाय पत्ती ढूंढ रहे हैं, क्यों मेरा कप वॉश नहीं था, हमारा दिमाग वहां नहीं जाता है। हमारा दिमाग कहाँ जाता है?
वो 2 मिनट क्यों लगा चाय उबालने में? क्या मैं एक बड़ा बर्नर ले लूंगा? अगर मैं स्टेनलेस स्टील के बदले में अगर मैं कॉपर का मैं वेसल ले लूंगा तो 2 मिनट के बदले में 1 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। तो हमारा दिमाग जाता है जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उसको और झड़प से करना, उसको और फास्ट करना। और जब भी आप वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को इंप्रूव करते हैं तो खर्चा जरूर होगा, मगर आप ढूंढना, चाय पत्ती ढूंढना बंद करेंगे, सब गैस स्टोव को इक्विपमेंट को बराबर मेंटेन करेंगे तो एक एक इन वन ट्राई योर गैस स्टोव विल स्टार्ट वर्किंग। उससे आप वो सब इंप्रूव करेंगे, आप वेस्ट एलिमिनेट करेंगे, वेस्ट ऑफ ढूंढना, वेस्ट ऑफ गैस स्टोव ना जलना, वेस्ट एलिमिनेट करेंगे तो पैसा बचेगा। आप पानी को जल्दी उबालने की कोशिश करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा। ये आपको मोटा मोटा समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलते हैं कि यूजफुल एंड वेस्टफुल, और वेस्टफुल वर्क निकालिए, यूजफुल वर्क मत निकालिए। तो कोई भी अगर आप एक ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस लेंगे, आप अगर कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग से आपने बेसिक पॉलिशिंग किया, सेटिंग किया, फिर से फिनिशिंग किया, वो सब किया, हर प्रोसेस में कुछ वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। पॉलिशिंग वैल्यू एडिंग है, बट पॉलिशिंग के बाद वो पीस इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू पिक इट अप, दैट वेटिंग इज अ वेस्ट। या पॉलिशिंग मैन इज वेटिंग, पीछे से माल नहीं आया, दैट इज अ वेस्ट, वेटिंग इज अ वेस्ट। लाइन में बैलेंस नहीं है, मशीन डाउन है, मटेरियल अगर स्टोन है तो और कुछ नहीं है, वो है तो ये नहीं है, सब कुछ ठीक है तो ड्राइंग ठीक नहीं है। सो देयर आर अनेक वेस्टेजेस, एंड एक कंपनी में सिर्फ 5-10% वैल्यू एडिंग काम होता है, बाकी सब वेस्टफुल है। तो आपको वेस्ट अटैक करना है या वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को अटैक करना है, बताइए। अगर आपके बॉडी में मसल भी है और चर्बी भी है, डॉक्टर क्या बोलते हैं? सेहत बनाना है, हेल्थ बढ़ाना है तो चर्बी कम करो। कोई डॉक्टर को सुना आपने जो बोलता है मसल को वीक कर दो? भैया, मसल को आप वीक करेंगे तो आप वीक हो जाएंगे, मर जाएंगे। बट जितना आप चर्बी निकालेंगे उतना आप हेल्थी होते जाएंगे। सो काइजेन इज एलिमिनेटिंग द फैट। एंड एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ लोग मैं जानता हूं कि आप में से कुछ ट्रेडिंग में भी हैं, कुछ लोग शायद रिटेल में भी हैं, एंड काफी लोग मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत कॉमन जो व्हील बैरो है, कॉमन वेस्ट है, वो है इन्वेंट्री। और मैंने जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में देखा है कि आपके पास रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री पड़ा रहता है, बहुत पैसा फंसा पड़ा है। WIP पड़ा आता है शॉप फ्लोर में, आधा पीस बना, कास्टिंग होके वेटिंग फॉर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग हो गया, वेटिंग फॉर सेटिंग, सेटिंग हो गया, वेटिंग फॉर फाइनल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन हो गया, वेटिंग फॉर डिस्पैच, WIP। एंड कभी कभी तो फिनिश गुड भी पड़ा रहता है। ये जो टोटल खर्चा है, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड, ये टोटल इन्वेंट्री लोग रखते हैं। और क्यों इन्वेंट्री है ज्यादा? क्योंकि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले हम लोग इन्वेंट्री रखना चालू करते हैं। आपको पता नहीं कि वेंडर टाइम पे देगा नहीं देगा, तो इन्वेंट्री रखो। आपका मशीन बराबर चलेगा नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा मशीन रखो या स्पेयर पार्ट रखो, नहीं तो एक्स्ट्रा पीस रखो। आपको पता नहीं कास्टिंग में माल बराबर निकलेगा नहीं निकलेगा, 20 पीस चाहिए, 25 पीस कास्टिंग कर दो। तो हर जगह पे प्रॉब्लम्स को आप इन्वेंट्री के साथ आप you exchange problem solving with inventory, and this causes inventory is a big waste. It locks lot of your money. So my friends, so again मैं आपको याद दिला रहा हूं, ट्रेडिशनल माइंडसेट इज कट कट कट, कैंची चलाओ। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद तो लोग कॉस्ट कटिंग करेंगे और लोगों को निकालेंगे। और कौन से लोगों को निकालेंगे? जो 15,000 20,000 कमाते हैं। बट उससे अच्छा है कि आप सब ऊपर में थोड़ा सैलरी कट करिए, नीचे लोगों को थोड़ा कम करिए, और जितना हो सकता है कैरी योर पीपल, सबके साथ सबके विकास। बिकॉज अगर आप अपने लोगों को अभी आगे लेके आप उनको बचाएंगे तो यही लोग आप एक कंपनी को बचाएंगे आगे जाके।
मगर हम लोग अंधाधुंध सबको बाहर निकालेंगे तो आपके कंपनी के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा और इकोनॉमी भी और नीचे जाएगा। तो ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है। एंड और काइजन माइंडसेट क्या बोलता है? डोंट कट कॉस्ट, कट वेस्ट। ओके, कट वेस्ट, डिलीट वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने बोला डोंट डिलीट पीपल बट यू डिलीट 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस। इसको हम काइजन में मुदा, मुरा, मुरी बोलते हैं। मुदा, मुरा, मुरी जो है 3 जापानीज शब्द है। मुदा का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो, वेस्ट। और मैंने बोला इन्वेंट्री एक वेस्ट है। ऐसे 7 टाइप के वेस्ट है। तो ये मुदा, मुरा, मुरी 3 शत्रु है, 3 enemies. If they come into your business is in deep trouble. You will have production losses, your cost of operations will go up, your quality will come down. Muda, mura, muri. Muda means 7 types of waste. So excess inventory waste, waiting is waste, rework is waste, excess transportation is waste, unnecessary motion waste, over processing waste, over production waste. There are 7 types of waste. आज टाइम नहीं है पूरा समझाने के लिए, बट ये 7 डेंजरस वेस्ट है। मुरा का मतलब है वेरिएशन, पीस टू पीस वेरिएशन, पॉलिशिंग में वेरिएशन, supplier to supplier variation, setting to setting variation. So variation can be in quality, variation can be in quantity. But जब वेरिएशन होता है तो क्या करना पड़ता है? फिर से आप रीवर्क करेंगे, रीप्रोसेसिंग करेंगे। बट एक वेरिएशन जो कोई भी आदमी, they don't want one type of variation, that is called variation in salary. Everybody will say, I want my salary on time, in full, error free. Correct? Salary should be on time, in full, error free. But production, dispatch, हाँ सेल्स, अरे साहब वो सेल्स में क्या है, प्रोडक्शन में क्या है, ऑन टाइम इन फुल एरर फ्री होने के लिए थोड़ा मुश्किल है। वो वेंडर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, डायमंड ठीक नहीं है, उसके लिए अनेक अनेक रीजंस है। बट सैलरी हैज टू बी ऑन टाइम इन फुल एरर फ्री। दैट इज द मीनिंग ऑफ मुरा। एंड मुरी मीन्स तकलीफ, बर्डन। एंड जब लोग काम करते हैं तो लोगों के ऊपर बर्डन होता है। आपका अगर चेयर एंड स्टूल एंड लाइट एंड ईयर आई पीस बराबर नहीं है तो बहुत थकान होता है, प्रोडक्टिविटी कम्स डाउन। और इक्विपमेंट के ऊपर भी आप क्लीनिंग, ऑयलिंग, टाइटनिंग और इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, COTI, क्लीनिंग, ऑयलिंग, टाइटनिंग, इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो वहां भी बहुत तकलीफ होता है, ब्रेकडाउन होता है, स्पेयर पार्ट कंजम्पशन बढ़ जाता है। सो माय फ्रेंड्स, मुदा, मुरा, मुरी आपके 3 शत्रु है। इसको अटैक करना, इसको ढूंढना, इसको कम करना, वही काइजन है। और जब इसको आप ढूंढ के अटैक करते हैं, देखिए एक ये प्रोसेस है। लेफ्ट हैंड साइड से सप्लायर से माल आया, आपने उसको कास्ट किया, पॉलिश किया, सेटिंग किया, फिनिशिंग किया, एंड कंज्यूमर या कस्टमर के पास माल जाता है। ये पूरा वैल्यू चेन में जो रेड है वो सब वेस्ट है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है। तो काइजन का मतलब क्या है? ये सब नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को ढूंढो और जैसे जैसे आप उसको, देखिए ये वैसे फिर से दिखाता हूँ, जैसे जैसे आप ये जब सब नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को आप एलिमिनेट करते हैं तो आपका टोटल थ्रूपुट टाइम, मैंने जो चाय का उदाहरण दिया था, 12 मिनट टी मेकिंग जो है आपको कम होके 12 से 10, 10 से 8, 8 से 7 हो सकता है। और जब आपका टोटल मटेरियल वेलोसिटी इंप्रूव होगा, आपका थ्रूपुट टाइम कम, जब टाइम कम होगा तो मटेरियल आपके सिस्टम में इन्वेंट्री कम होगा, और जब इन्वेंट्री कम होगा माय फ्रेंड्स तो कैश फ्लो इंप्रूव होगा। कोविड सिचुएशन के बाद कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस आने वाला है। और कैश फ्लो यू कैन ओनली इंप्रूव थ्रू डेटर्स मैनेजमेंट, उघरानी, एंड इन्वेंट्री रिडक्शन। इन्वेंट्री को कम से कम घुमाओ, इन्वेंट्री को घुमाओ, इन्वेंट्री को मत शॉप में मत रखो, फ्लोर पे मत रखो। माल आया, प्रोडक्ट बना, उसको भेजो, कैश लो। और डोंट कैरी इन्वेंट्री।
मिनिमाइज जितना हो सकता है, 5% कम कर सकते हो, 10%, 20%, 25%। कुछ कुछ कंपनी में तो हम लोग अभी एक उदाहरण बोल रहा था मैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब से माल आता है रॉ मटेरियल फैक्ट्री से, टैबलेट बन के टैबलेट डिस्पैच होने तक 40 दिन का प्रोसेस है। 40 दिन का प्रोसेस नहीं है, उसमें सिर्फ 18 घंटा प्रोसेस है, बाकी 40 दिन वो रुकता है हर जगह, वेटिंग फॉर इन्फेक्शन, वेटिंग फॉर दैट, वेटिंग फॉर दिस। हमने उस कंपनी में काइजन धीरे 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 करके टीम बना के इम्प्रूवमेंट करते 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 वो 40 दिन को 4 दिन हमने किया, और अभी वो 4 के ऊपर भी काम कर रहा है। आप सोचिए कितना पैसा बचा होगा इस कंपनी को, कस्टमर को कितना फायदा हुआ होगा। सो माय फ्रेंड्स, कैश इज किंग, कैश इज किंग। कैश फ्लो के लिए आपको मटेरियल को फ्लो करना बहुत जरूरी है। सो माय फ्रेंड्स, आपको ये फ्लो कहाँ कहाँ करना है, आप ये मत सोचिए सिर्फ फैक्ट्री में करना है। देखिए कोई भी जेम एंड ज्वेलरी में एक तो एनपीडी है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा है प्रोक्योरमेंट, सॉर्टिंग, डायमंड सॉर्टिंग, प्रोक्योरमेंट। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, एंड चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग। तो काइजन कहाँ करना चाहिए? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ फैक्ट्री में? क्या आप जिम में जाके सिर्फ अपने राइट हैंड को एक्सरसाइज करिए तो राइट हैंड तो आपका टाइगर श्रॉफ जैसे बन जाएगा तगड़ा, लेफ्ट हैंड का क्या होगा, बॉडी का बाकी का बॉडी क्या होगा? So you have to improve the whole, not the bits. You have to apply Kaizen in all elements of your business. In one company in Bombay, I will not tell the name, but we have been working on how to improve the time required for new product launch. जो कुछ हफ्ते लगते थे उसको हमने 30-40% कम कर दिया। तो ये कॉम्पिटिटर से ज्यादा फास्ट आप सैंपल्स बना सकते हैं। कस्टमर्स आपके पास आते हैं क्योंकि आप फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। आजकल स्पीड का जमाना है। सो आप काइजन न्यू प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट में, सॉर्टिंग में, डायमंड सॉर्टिंग, स्टोन सॉर्टिंग, बहुत पोटेंशियल है। ऑफ कोर्स फैक्ट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है, एंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां भी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आप जब काइजन के बारे में सोचते हैं तो संपूर्ण काइजन, दैट इज कॉल्ड टोटल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टोटल काइजन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सिर्फ अपने राइट आर्म को इंप्रूव मत करिए, संपूर्ण इंप्रूवमेंट के बारे में सोचिए। तो ये संपूर्ण इंप्रूवमेंट कैसे होता है, इसका मैंने बोला था कि सूत्र क्या है, हाउ डू यू मेक द इंप्रूवमेंट। तो मैं आपको 5 सूत्र बताऊंगा। ये काइजन कल्चर आपके कंपनी में लागू करने के लिए, टू ब्रिंग एक्सीलेंस इन योर कंपनी, 5 सूत्र हैं। सबसे पहले है, आपको क्या सुधार करना है वो जानना बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स। गलत चीज को आप सुधारेंगे कोई फायदा नहीं है। जब आप एक टैक्सी के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहला सवाल जो टैक्सी का आदमी पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, और आप बताएंगे मुझे पता नहीं, तो क्या होगा, वो आपको टैक्सी के बाहर फेंक देगा। ऐसे ही सबसे पहले इस कहाँ जाना है, टारगेट्स। उसके बाद आपको समथिंग कॉल्ड डेली काइजन करना है एंड ब्रेक थ्रू काइजन करना है। 2 चीज। ब्रेक थ्रू काइजन मीन्स क्या, इंप्रूव, सुधार करना, टारगेट के दिशा में जाने के लिए सुधार करना। तो आपने इन्वेंट्री के ऊपर काम किया, आपने मशीन डाउन टाइम के ऊपर काम किया, फ्लो इंप्रूवमेंट किया, टाइम रिडक्शन किया, डिफेक्ट्स कम किया, ये सब इंप्रूवमेंट है। और डेली काइजन का मतलब क्या है? डेली मतलब है, अक्सर लोग इंप्रूवमेंट तो कर लेते हैं, बट वो इंप्रूवमेंट डेली टिकता नहीं है, कुछ हफ्ते के बाद वो इंप्रूवमेंट उड़ जाता है। रबर बैंड जैसे होता है ना, रबर बैंड को आप खींच के रखिए, फिर आप छोड़ दीजिए तो वापस अपने शेप में चला जाता है। ऐसे ही इंप्रूवमेंट तो लोग अक्सर कंपनी में करते हैं, बट इंप्रूवमेंट टिकता नहीं है। दैट इज बिकॉज आप डेली काइजन नहीं करते हैं। डेली काइजन से हैबिट बनता है, ब्रेक थ्रू काइजन से इंप्रूवमेंट होता है। यू हैव टू इंप्रूव एंड यू हैव टू सस्टेन, इंप्रूव सस्टेन, इंप्रूव सस्टेन, इंप्रूव मेक ए हैबिट, इंप्रूव मेक ए हैबिट। ये दोनों जरूरी है। सिर्फ आप अगर
ओनली आप इम्प्रूवमेंट करेंगे और डेली काइजन नहीं करेंगे तो तकलीफ है। और इंडिया में हमारा डेली मैनेजमेंट, डेली काइजन बहुत वीक है। डेली काइजन का मतलब है मीट डेली, मेजर डेली, इंप्रूव डेली। मीट डेली, मेजर डेली, इंप्रूव डेली। मीट डेली, मेजर डेली, इंप्रूव डेली। ये एक टेक्निक है, एक सिस्टम कंपनी में लागू करना पड़ता है। और आप जो डेली करते हैं उसी से आपको जिंदगी में फायदा होता है। मान लीजिए आपके आपके आपका आप हर रोज 20 मिनट चलते हैं, पिछले 10 साल में 20-25 मिनट, बट रोज आप चलते हैं सिर्फ 20-25 मिनट। बट आपका एक कोई दोस्त है वो रोज चलता नहीं है, बट कभी कभी संडे को 2 घंटा वॉकिंग करके आता है। आप बताइए किसका हेल्थ बेटर होगा, जो 20 मिनट रोज करता है या 2 घंटा ओनली संडेज करता है? आप समझ सकते हैं। सो डेली मैनेजमेंट इज दैट 20 मिनट रोज चलना, इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। ओके, एंड ये सब करने के लिए आपको लीडर काइजन, आप सब बिजनेस लीडर्स हैं, आज आपने 1 घंटा इस सेमिनार में दिया, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में काइजन नहीं बैठेगा तो आपके कंपनी के अंदर काइजन का कभी सिस्टम चालू नहीं होगा। लीडर्स का कमिटमेंट चेंज में, लीडर्स का रोल चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड लीडर काइजन। उसमें भी कुछ टेक्निक्स है, स्टैंडर्ड वर्क, लीडर स्टैंडर्ड वर्क एक्सेट्रा। एंड फाइनली सपोर्ट काइजन। सपोर्ट काइजन मीन्स आपके अगर कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट है तो आईटी मैनेजर है, ऐसे ही आपकी एक छोटा सेक्शन होना चाहिए, काइजन सेक्शन, काइजन मैनेजर होना चाहिए। छोटा कंपनी में तो चलो आप ओनर है, आप काइजन मैनेजर भी खुद है, आप डिस्पैच मैनेजर भी हैं और आप प्रोडक्शन मैनेजर भी है। बट थोड़े बड़े कंपनी में 1-2 आदमी को तो थोड़ा काइजन सिखाओ, वो प्रचार करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे। जब तक आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पेड़ को, पौधे को पानी नहीं डालेंगे तो ये पौधा वृक्ष नहीं बनेगा। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, गवर्नेंस, मैनेजमेंट। So my friends, these are the 5 building blocks. Okay, if you want सुधार, सबसे पहले सोचो कि क्या सुधारना है। उसके बाद आपको एक तो सुधार करो और दूसरा सुधार को you sustain the सुधार through daily activities. So breakthrough and daily. And इसको लीडर के साथ जोड़ो, लीडरशिप इसमें उसका सपोर्ट जोड़ो इसके साथ। लीडर कैन नॉट से हाँ मुझे काइजन समझ में आता है, ए बच्चे लोगों को काइजन करने दो, ए सुपरवाइजर तू करना काइजन, हम लोग मैनेजर नहीं करेंगे। सुधार हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। एंड फाइनली इस पौधे को आप पानी डालिए तभी वो वृक्ष बनेगा। आप ना ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ना काइजन कोई कंसल्टिंग या कुछ हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, कोई कोच नहीं रखना चाहते हैं, मगर आप खुद अपना योगा सीखना चाहते हैं वीडियो से, वो थोड़ा डेंजर है। सचिन तेंदुलकर को भी कोच होता था, राइट? एवरीबडी नीड्स अ कोच, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ कोच। सो माय फ्रेंड्स, this is called the Kaizen change model. The Kaizen change model is the model that we teach, we implement in the companies, and इससे आपका Kaizen का कल्चर बनता है, and यही हम कंपनीज में सिखाते हैं। और Kaizen चेंज मॉडल के 5 मैंने आपको सूत्र बनाए, और आप ये जान सकते हैं कि अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे। अगर टारगेट है और आप इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं तो आप पहुंचेंगे नहीं। आप इंप्रूवमेंट करते हैं बट डेली काइजन नहीं करते हैं तो इंप्रूवमेंट टिकेगा नहीं, और ये लीडरशिप के बिना कहीं शुरुआत नहीं होगा, और सपोर्ट के बिना ये पौधा मर जाएगा। तो ये 5 चीज बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। इसको हम काइजन चेंज मॉडल बोलते हैं, और ये काइजन चेंज मॉडल हमारा काइजन इंस्टीट्यूट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी 7:04 हो रहा है, एग्जैक्टली 60 मिनट्स मैंने बोला था। 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे कि मैं काइजन इंस्टीट्यूट का, जैसे एडी साहब ने बताया, I founded the Kaizen Institute in the year 2000 in India, and we are 50 team members all over India, Africa. We have offices in Myanmar, Cambodia,
So the Kaizen Institute is the original Japanese company. Kaizen नाम हमारा कंपनी का ट्रेडमार्क है. हम होलिस्टिक काम करते हैं. डिजाइन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह काइजन. ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री में करते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ गोल्ड कंपनी, ज्वेलरी कंपनी में. हम लोग वोडाफोन, कार कंपनी, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, हर जगह, हर सेक्टर में सुधार करने के, निरंतर सुधार तो हर जगह चाहिए सर. गवर्नमेंट में भी चाहिए, हॉस्पिटल में भी चाहिए. और हम वर्ल्ड वाइड काइजन इंस्टीट्यूट के 50 कंट्रीज में ऑफिसेस हैं. और लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस काइजन इज ए वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. आप लोग, सब लोग आज मुझे सुन रहे हैं. आप लोगों में से कितने लोगों को स्विमिंग आता है? शायद 50-60% कैन स्विम. बट हाउ मेनी डिड यू लर्न, हाउ मेनी ऑफ यू लर्न स्विमिंग थ्रू वेबिनार और ऑनलाइन कोर्स? नॉट पॉसिबल, राइट? स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ता है. ये जो पानी है वास्तविकता, इट इज कॉल्ड गेम्बा इन काइजन. सो हम इसको बोलते हैं कि सुधार करना है तो गेम्बा में जाओ, वास्तविकता में जाओ. इट इज वेरी प्रैक्टिकल. साइकिलिंग सीखना है तो आप वेबिनार में साइकिलिंग नहीं सीख सकते. आपको साइकिल से गिरना पड़ेगा, 2 बार उठना पड़ेगा. मगर आप साइकिलिंग सीख जाते तो जिंदगी भर आप भूलते नहीं. ऐसे ही काइजन एप्लीकेशन से ही होता है. गेम्बा में, वास्तविकता में अप्लाई करना पड़ता है. इसलिए हम इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं. कंपनी को सुधार करना है तो मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के चाय और पकौड़ा खा के सुधार नहीं होगा. आपको वास्तविकता में जाके लोगों के साथ जुड़ के मुदा मुरा मुरी निकाल के सुधार करना पड़ता है. एक जंग है, इसमें दिमाग का जरूरत है, सिर्फ पैसे का नहीं. बहुत बहुत आभार, शुक्रिया. मैंने हिंदी यूज किया. आई डोंट नो, कुछ लोगों को शायद ओनली इंग्लिश आता होगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ. मुझे स्पेसिफिकली बोला गया था कि जरा हिंदी में आप जोर दीजिए. हिंदी में कोई भी चीज में अगर गलती है तो माफ कर दीजिए. आई एम गोइंग टू स्टॉप माय कास्टिंग एंड I'll keep my line open for questions. आभार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जयंत जी. अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे बेसिकली. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ऑल ऑफ यू बेसिकली you can ask basically, क्योंकि जयंत जी is one of the, or maybe the best expert in the country in terms of Kaizen, and we are lucky that he has come to us to give lectures. So you will not get this chance, so utilize this opportunity to ask questions. I have one question, like when I was going to you, you have told that every day, you have to practice Kaizen basically and have to take the review basically. So, Jayanji, if you can say more about this, that how you have to organize the time so that every day you can take that kind of review. Time. You're saying time? Can you repeat your question? Sorry. No, what I am telling that I have seen one slide where you are telling that if you have to organize that every day you have to take a review and have to practice Kaizen basically to see that for that day how much you have achieved basically and what are the changes. Correct. So that means to evict all those Budamuri basically. So every day you have to take a review. Yeah, it's very simple, sir. See, when you're driving a car, okay, and you have to keep steering your car, the steering wheel ko every minute you have to make sure that you're checking and you're steering and you're controlling the direction. If you don't steer, okay, and after for 2 days or 1 hour or 1 minute you don't steer, and then the car is out of course, then you either have an accident or you will need lot of time to bring it back into the desired direction. So that is the meaning of daily management. And daily management, daily work management doesn't need much time. It is designed to happen every day in 10 to 15 minutes. These are stand-up meetings.
happening in 3 layers called tier 1, tier 2, tier 3 meetings. Tier 3 meetings are of the senior most people. Tier 2 is supervisors with the managers, and tier 1 is natural teams, which is happening of, say, all the polishing people will have one of their own 10 minutes meeting, all the with their supervisor. All the people in cutting department will have one tier 1 meeting. So there is tier 1, tier 2, tier 3, and these meetings happen at all the 3 levels. It's a very structured process, very powerful, and once you start doing it, जो आपका रोज का फायर फाइटिंग होता है और रोज का जो वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट, वो निकल जाता है. तो एक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इसको देने से आपके घंटे बच जाते हैं दिन में. That's great. One of the questions what is coming from the audience is that what is the role of Kaizen to reduce constraints? What is the role of Kaizen in reducing constraints? So I think somebody must have attended some webinar on TOC, theory of constraints. वो वहां से कहीं I think fresh दिमाग चल रहा है. राहुल भैया इसके साथ 6 बजे की अपॉइंटमेंट लिख दो. So see, constraint. See, in every system, in every process, there is a constraint. Okay, but once you identify the constraint, you have to do something to eliminate that constraint. And eliminating that constraint needs the Kaizen thinking, needs Kaizen tools. Okay, so and the Kaizen and the constraint keeps moving. If you attack one constraint, if you eliminate one constraint, the constraint may move to some other spot. Okay, but as the constraint moves, you have to have tools to eliminate. You should have tools to deal with the constraint, and those tools are the Kaizen tools. So only identifying constraint is not enough. The tools, the Kaizen tools to eliminate them is important. So something like value stream mapping, we do value stream mapping very often when we start a work in a company. And through the value stream mapping, you can identify all the constraints, all the obstructions to flow from the time order to cash. Okay, जब से एक customer का order आता है, all the way till वो order design बन के production हो के cash जब तक आपके बैंक में नहीं आएगा, वो पूरा cycle को कम करना है. And उस cycle में order to cash, उस cycle में कितने रुकावट आ रहे हैं, वो identify करना बहुत जरूरी है. Thank you. Okay, very good. सर Now, एक one practical question which is coming, somebody from his own experience, he is telling that I deal in diamond jewelry and the most recurring issue are the karigars delivering late again and again. Bad excuses just don't dry up and they just don't improve even after offering more money. So this is what I think as a constraint somebody has told, I think. या इसके बारे में देखिए, मैं इमीडिएटली कुछ बता नहीं सकता, थोड़ा मुझे और डीपली समझना पड़ेगा. कारीगर मींस आपके घर के कंपनी के अंदर के कारीगर हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट एक चीज मैं इतना बता सकता हूं कि सिर्फ इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव दे के सुधार नहीं होता है. इनफैक्ट ये इंसेंटिव देना, पीस वर्क पे काम कराना, अल्टीमेटली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, बिकॉज ये एक कैंसर बन जाता है और इसको आप फिर उसको जितना भी आप देंगे कम पड़ेगा. सो दिस इज नॉट द वे टू डील विद इट. आप मुझे एक ईमेल लिखिए, वी कैन डिस्कस दिस, और माय फोन नंबर और व्हाटएवर. आई होप if you have any questions, I'm sending my my name and number, and questions which I cannot answer now, maybe we can discuss. Yeah, but I can just tell you that there are different ways to deal with this. Just giving cash incentive more and more doesn't help. There is something called partnership, there is something called servant leadership. ये सोचना पड़ेगा. I don't want to give you an answer just for the sake of giving an answer. Thank you. One of the last questions that I think has come, of course,
I think after that we should wrap it up. Is that somebody is asking that whether Kaizen does the process mapping or not? Somebody is asking what? Sir, Whether- without mapping a process, how can you improve? So when I said set the target, to set the target, the first thing that we do in the company, आपके सीड्स बॉम्बे में बहुत सारे कंपनीज में है, हमारे पास छोटे कंपनी के लिए 3 दिन का है और बड़े कंपनी थोड़ा बड़ा कंपनी के लिए 5 दिन हमको लगते हैं पूरा एंड टू एंड स्कैन करके उसको असेसमेंट बोलते हैं और पूरा कंपनी में मुदा मुरा मुरी कहाँ है, कहाँ रुकावट है, पूरा मैप करके हम आपको एक रिपोर्ट देते हैं. ओके कि दिस इज वेयर अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ आपके तकलीफ है, यहाँ आपका कंस्ट्रक्शन आपका ऑब्स्ट्रक्शन है. तो पहले वो करना पड़ता है, उसके बिना आगे नहीं चलना चाहिए. बिना टारगेट, बिना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट शुरू होना नहीं चाहिए. तो जिनको भी ये कराना है आप प्लीज मुझे एक ईमेल लिखिए. छोटे साइज कंपनी में 3 दिन में हो जाता है लगभग. थोड़ा अगर बड़ा है तो आप एक हफ्ता लगता है, 4-5 दिन डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करने में. एंड मेरा ईमेल आप लोग, आई रिक्वेस्ट द एसोसिएशन टू प्लीज शेयर. इट इज, मैंने शेयर भी किया है इस व्हाट्सएप चैट में. इट इज jmurthy@kaizen.com. आई थिंक I request the association to share it with the participants. Sure, sir. हम शेयर कर देंगे. Good. Anything Okay, else, my friends? सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि लोगों के माइंड सेट कुछ. हाँ सर, एक क्वेश्चन आपके परमिशन से. सर मुझे ये जाना था कि जो वर्किंग पीपल है उनका माइंड सेट चेंज करने के लिए एग्जैक्टली किस ढंग से उनको मोटिवेट करे जो पुरानी पद्धति से काम कर रहे हैं, उसके लिए काइजन कहाँ हमें हेल्पफुल सकता है? सर काइजन का स्टार्टिंग पॉइंट है माइंडसेट चेंज करना और काइजन का एंड पॉइंट है माइंडसेट चेंज करना. तो मैं एक उदाहरण के साथ में ये ये मैं बंद करना चाहूंगा आज. देखिए, मान लीजिए मेरा एक आदत है और मैं आदत वो है कि मैं च्युइंग गम खाता हूँ. ओके, और मेरे पॉकेट में च्युइंग गम हर वक्त रहता है. तो एक दिन मैं एक वेजिटेबल मार्केट में जाता हूँ. गंदा सा मार्केट है और वहां मैं सब्जी खरीद रहा हूँ और मेरे आदत से मेरा पॉकेट के अंदर एक च्युइंग गम निकलता है और वो च्युइंग गम मैं खाता हूँ और मेरे हाथ में वो च्युइंग गम का रैपर है, कवर है, पैकेट है. तो क्या करूंगा मैं उस रैपर का? मैं बाजार में हूँ, गंदी सी बाजार, भिंडी बाजार. तो 2 टाइप के लोग हैं. कुछ लोग पॉकेट में रख लेंगे और आम आदमी तो नीचे गिरा देगा. तो मान लीजिए मैं भी आम आदमी हूं, मैंने नीचे गिराया और मैं चला गया. अब अगले दिन मुझे कोई 5 स्टार होटल, मैरियट होटल में जाके 8:30 बजे किसी से मिलना था. तो मैं मैरियट होटल पहुंचता हूँ, 5 स्टार होटल है, 5 मिनट जल्दी पहुंचता हूँ और मैं जब उस आदमी के लिए खड़ा हूं तो मैं देखता हूं कि मैं पहुंच जाता हूं रिसेप्शन पे. बहुत बढ़िया रिसेप्शन है, कारपेट है, म्यूजिक है, अच्छे लोग हैं, सुंदर लोग हैं. और मेरा हाथ जाता है पॉकेट के अंदर, मुझे च्युइंग गम मिलता है, मैं च्युइंग गम खाता हूं और अब मैं रिसेप्शन में हूं मैरियट होटल में. तो आप बताइए मैं इस च्युइंग गम रैपर के साथ क्या करूंगा? क्या मैं उसको लॉबी में फेंक दूंगा नीचे या मैं पॉकेट में डालूंगा? ये बहुत बड़ी सोचने की पॉइंट है और लोग अक्सर यही उत्तर देते हैं कि वह पॉकेट में डालूंगा या डस्टबिन ढूंढ के डस्टबिन में डालूंगा. तो मैं ये सेशन बंद करना चाहता हूं आपसे पूछ के कि लोगों का सुधार कैसे हो सकता है माइंडसेट. मैं वही आदमी था, मैं पिछले दिन बाजार में नीचे फेंका, अगले दिन मैं मैरियट होटल में पॉकेट में रख लिया. अब मैं बदला या क्या बदला, वो बहुत बड़ी बात है. तो लोगों का सुधार करने में अगर आप 1 डे वर्कशॉप करेंगे, चेंज माइंडसेट, कुछ दुनिया बदलने वाला नहीं है साहब. चेंज करने के लिए देयर इज अनदर डिफरेंट अप्रोच. यू हैव टू चेंज द वर्किंग एनवायरनमेंट, यू हैव टू चेंज द गेम्बा, यू हैव टू चेंज. वास्तविकता जब बदलता है तो लोगों का सोच बदलता है. इसके साथ शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ओवर टू द पार्टिसिपेंट्स. Thank you, Jain ji, and it was a very absorbing session. And of course, आगे भी आप हमारे इंडस्ट्री को सेशन दिया है
and we think that it will continue, and the industry will gain from this insight from you and this interaction from you. Thank you. Shubhratri. फिर मिलते हैं. थैंक यू सर. Thank you, sir. क्लोज करो भाई.